and gentlemen, tonight on Frankly Speaking, I'm joined by a very special guest, a man who we met last year in the middle of the migrant crisis, and a man who's kept up his promise to serve anybody in help this second wave of COVID-19 as well. Sonu Sood, our special guest on Frankly Speaking tonight. Thank you very much, Sonu Sood, for joining me on Frankly Speaking. And last year when we spoke, we were going through the migrant crisis as a result of the lockdown and the COVID crisis. This year, the second wave of COVID-19 has taken virtually the entire country by surprise. And once again, you've been seen to be the man in action. What keeps you going, Sonu Sood? What was it that brought you back as the new Messiah for the people of India, for the people of Maharashtra specifically? Thank you so much, Navika, for having me. And it's not that I came back, I was always there. I connected with almost close to 1 million people when the migrant movement started. And when the COVID wave got a bit settled, all these people were searching for their jobs. So I got them jobs. They wanted to, take help for the education. So we got a lot of scholarships, healthcare. So I was doing all that. Post the COVID ended in the first wave, and when the second wave suddenly started, all these people who were actually in need of help at that time, they became my volunteers. They were trying to help people. They got me connected to the rural India. And all the difference between like you asked me, the difference between the first and the second wave is, in the first wave, I would say the rich and the more privileged people, were in their rooms or in their houses, and they could see everything happening on the televisions. But now they were the ones who suffered more. They were in the hospital, standing outside the hospitals, hunting for oxygen or this medicine. So I think this wave is very severe, and we have lost so many lives. But Sonu, you've built, you said, a network of volunteers who've stayed with you even when जिसको कहा जाता है प्रकोप या जो इतना ज़्यादा spread of anger इतना नहीं रहा. From September, October, we almost thought we were limping towards some sort of normalcy. What is this network of volunteers, and how many people are there? Are these people who just work out of a sense of coming together in a crisis? Do you actually have a network of volunteers who are being paid? How does this work? How does this system work with a one-man show called Sonu Sood, who seems like such a huge NGO? Sonu Sood is the most common man, you can say, and the most of the people who work for me, I haven't met them. Most of the people I haven't spoken to also, but they know that they are working for me. We help hundreds and thousands of people every single day. We save many lives and we lose many. All the people who we try to save and who have lost their families, wives, children, after 2-3 days, they forward and they said, "Sir, you tried a lot to help or save my father or a mother. We couldn't save them, but now we want to join you to save someone else family." So they became a volunteer who were 24/7 available for you. And all the people who came and joined me, I said, it's not something that you can give a 2-hour, 3-hour in a day. It's a 24/7 job. I might call you in the middle of night at 3 o'clock to arrange for an ambulance from Bareilly to Delhi, or a medicine for someone sitting in Indore or Hampi. So I think it's a 24/7 job. If you're there, please be, you're a part of Sood Charity Foundation. And Ravika, every single day people are growing, and they said, we just want to be a part of it. And the kind of positivity that I see in their souls, it's amazing, and it charges me to work hard. Sonu Sood, you've said in the past that this is possibly the most challenging role that has come your way. But this is not just a role in front of a camera. This is a role of real life, where real lives matter, where you're talking about, as you said, somebody's parents, somebody's children, somebody's brother or somebody's sister, somebody's very, very close and loved one. How is this role different from the other roles that you've played?
I after what I did in past 1.5, 2 years, I realized that what I did in past 20 years was something which I just did because I had a dream. I came to the city to become an actor. I did my roles. I did many movies, but I I invented myself during last 1.5, 2 years. I connected with the world. I connected with every single soul. An individual living in Bihar, UP, or any part of the country. When I call them, the kind of vibrancy that I see in the hear in their voice, they're desperate calls, and they said, "Please save my mother. Please save my father." And when they hear my voice, the kind of happiness and trust that I can hear from their voices gives me that faith. Okay, this is what I always wanted to do in my life. I look forward saving lives every single day. I feel very sad when the people we try to help, we lose them, and every day we lose 10, 20 people. We are struggling to get them beds or oxygen or medicine or whatever they need. But we know that we can't stop. We have to save these lives, people who have been calling us day and night. So I would say this is my role, and I want to thank God that I could identify myself maybe late, but now I can know why Sonu Sood came to the city. सोनू, हर वो इंसान जो अपने अ, जिंदगी में अपनी जिंदगी में एक अलग सा किरदार निभाता है, उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है, या कोई ना कोई ऐसी उसकी लाइफ की स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो ये सब करता है। स्पेशली एल्ट्रुइस्टिक वर्क हो, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, इसका कोई ना कोई एक स्टोरी होती है आपकी लाइफ में। शायद कोई दर्द की घटना होती है, या कोई ऐसा मकसद होता है जो किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर आता है। मे बी बिकॉज you've lost somebody dear, or you've seen something very closely when it happened to a friend or a relative or something. Is there something of that sort that put you into this track to come out there and begin to help people at a time when this country was seeing circumstances it had never seen before? Ravika, I remember as a kid, my father had a shop in Punjab called Bombay Cloth House, and he used to have this we have in North Khana Free Mein Bantu. And as a kid, I used to stand, and I also used to serve people. I used to feel very happy seeing those smiles जब उनको खाने को मिलता था. My mom was a professor in the college. She used to teach students free of cost, and she used to feel very happy when they used to pass. And I used to feel very proud कि मेरे मामा professor हैं, देखो सब लोगों को किया. Now when I sit back and think about those days, I realize the teachings that were embedded me in those times was what I'm doing right now. When I connected with those migrants, those smiles, those letters that I get from them every single day, they name their kids after me. So I realized actually this is what the real happiness is. When I started getting a lot of people connected with my system, they were not very keen. They were my friends, whom I call them. They're good for nothing. They party mostly on the telephone phones. They wake up late. But when I got them in my system, and when they started helping others, and when they started saving lives, believe you me, they are 20 to 22 hours every single day and night awake, trying to save lives. And this is what is there's this sudden change that happens in your soul, and you realize, man, this is what the real world is, and what you were living all these years was something which was not meant for you. So how is it different from Sonu Sood, the successful actor? At some point, when you came to Mumbai to try your luck as an actor, you would have thought that शोहरत, पैसा, एक certain standing society में, एक adulation from people, recognition from people, ये आपकी चीजें होंगी जो आपकी goals, आपके objectives थे. ये कब बदला, क्यों बदला? क्या वो जो चकाचौंध जिंदगी है जिसमें बहुत सी लाइट्स होती हैं, बहुत सी तालियां होती हैं, पर शायद 1 मिनट के बाद वो सब धुआं हो जाती हैं, ऐसा कौन सा वाक्य था जिसमें आप एक नया पर्पस जिंदगी में ढूंढने के लिए निकले? आप निकले पर्पस को ढूंढने के लिए कि पर्पस ने आपको ढूंढ लिया? आपने बहुत अच्छी बात कही नविका कि एक चुटकी बजाते सब धुआं हो जाता है. जब मैं मुंबई में आया था,
इंजीनियरिंग खत्म की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे लगा कि एक एक्टर बन गया तो बहुत बड़ी बात है। फिल्म्स की 100 करोड़ फिल्मों ने किया, आपको बहुत सक्सेस मिली, आपको लगा कि यही तो जिंदगी है जो आप करने आए, और फिर आपको ये सब करने को मिलता है जब आप लोगों की जिंदगी बचाते हैं, और आपको पता चलता है कि जो आप कर रहे थे वो सब नकली था। मैं अभी भी फिल्म्स करूंगा, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू डू मेनी मोर फिल्म्स एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। पर वो इतना छोटा है इस चीज के सामने कि आपने अगर 100 फिल्में की और आज आपने किसी एक इंसान की जान बचाई, वो सब 20 साल आपको लगते बहुत छोटे थे उसके सामने। सो आई बिलीव कि मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कई बार आप जिंदगी में, वो बोलते हैं कि मृग तृष्णा, कि आप सारी जिंदगी आप भागते रहते हैं उस चीज के पीछे जो जो आपके अंदर खुद होती है, आपको पता ही नहीं चलती। मुझे लगता है कि मैंने कहीं आइडेंटिफाई किया अपने आप को, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत लोगों से हर रोज सीखता हूँ। बट अगर हम आप फिल्म्स की बात करें, कुछ करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो वो सब खोखलापन है, सब नकलीपन है। आप एक ऐसे बबल में रहते हैं जहाँ पे आपको सब वाहवाही तो बहुत करते हैं, यार कमाल हो, आप बहुत बड़े स्टार हो, बहुत सीए हो, और जैसे ही आप पलटते हो तो आपके बारे में ही उल्टा बोलते हैं। तो मुझे लगता है शायद आई वाज ब्लेस्ड कि आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ एंड आई कुड टच दोज रियल सोल्स जो पलटते ही आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि यार बंदा कमाल है यार। सोनू सूद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल हमने लोगों की बहुत तकलीफें देखी। हमने शायद सबने जब वो माइग्रेंट्स को देखा, उसका कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन घर जा रहे लोग जो अफेक्ट हो रहे, एक एक तबके के लोग अफेक्ट हो रहे थे, और शायद शायद इतनी मौतें, इतनी हाहाकार हमने नहीं देखी थी पिछले साल, पर फिर भी हम बहुत अफेक्टेड हुए थे। लेकिन इस बार जब ये सेकेंड वेव आई, तो जो नज़ारा एटलीस्ट मैंने देखा, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि वो नज़ारा कुछ और ही था। आज हम सब ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई रिश्तेदार शायद ऑक्सीजन की किल्लत से ही दम तोड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी जिसको हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड करते थे। मैंने वो भी दौर देखा है जहां लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत थी और रेमडेसिविर कहीं मिल नहीं रहा था, सिर्फ स्टोरीज आ रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और जितनी दवाइयां हैं वो ब्लैक मार्केट में ज्यादा मिल रही हैं या बिल्कुल नहीं मिल रही। इस दौर के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और हमें एज अ सोसाइटी इससे क्या सीखने को मिला है? एक नई तरह की हेल्पलेसनेस, इसके अलावा हमने कुछ सीखा है क्या? नविका, इतनी मुश्किल जिंदगी लोगों ने देखी है, मुझे नहीं लगता कि आपने जैसे बोला कि हर किसी ने अपना कोई ना कोई पहचान वाला खोया है। बोलते हैं कि जैसे पत्तों की तरह लोग गिरे हैं, वैसे लोग गए। मेरे पास दिल्ली बहुत इफेक्ट हुआ था, यूपी बहुत इफेक्ट हुआ था। मुझे याद है कि मेरे पास नॉन स्टॉप फोन आते हैं, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स, मेडिसिन, ये वो। तो मैं बोलता था कि एक कैसे दिलवाऊं, और ये सब इन्फ्लुएंशियल लोग से जिनकी बहुत पहुंच थी, शायद मैं इनको कई बार फोन करता कि आप वहां पे मुझे बेड चाहिए। वो लोग भी उतने हेल्पलेस थे। कहीं से सोनू भाई आप ऑक्सीजन दिलवा दो हमें, करनाल से, हरियाणा से, कहाँ कहाँ से हम दो दो सिलेंडर्स लाके रात रात भर को देते थे, श्री गंगानगर से लाके देते थे। तो सब लोग हेल्पलेस थे। वो बोलते हैं कि जब आप डूबने लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं हाथ फैलाते हैं उस सहारे के लिए जो आपका हाथ पकड़ के खींचेगा। पर इतने लोग डूब रहे थे, हर रोज इतने लोग डूब रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था किसको। अगर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक लड़की थी, मैं उसको परसों हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शी नीडेड एन एक्मो, उसको मशीन चाहिए थी अपने भाई के लिए, और मैं बड़ी मुश्किल से अरेंज किया उसके लिए। और वो लड़की के लिए, मदर की मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था। वो क्रिमेटोरियम से फोन करके मुझे बोल रही थी कि मैं सर, मेरी मदर तो रही नहीं, मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे भाई को आप एक्मो करके बचा दीजिएगा मेरे भाई को। तो आप सोचिए कि वो क्या दौर हुआ कि आप अपनी मदर के लिए रोएं कि अपने भाई को बचाने के लिए हौसला रखें। फिर पता चलता भाई भी चले गया, दूसरा भाई फिर आईसीयू में। जो पूरे पूरे परिवार नविका हुए, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा दौर किसी ने देखा होगा। और किस चीज के लिए? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, या सिर्फ एक बेड के लिए, जो मुझे लगता है हर किसी का हक था, पर समय ऐसा खराब था। और मैं कभी बोला नहीं आज तक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मेरे माँ बाप नहीं रहे तो शायद ठीक था, वो समय पे चले गए। अगर मुझे कभी उस दौर से गुजरना पड़, माँ बाप को मैं एक बेड नहीं दिला पा रहा था या ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहा था, तो शायद मैं बहुत
टूट गया होता, और मैंने हर रोज लोगों को टूटते हुए देखा है, हेल्पलेस होते हुए देखा है। तो आई थिंक इससे खराब दौर कभी नहीं आया है और ना कभी आना चाहिए। सोनू जी, मैं इसके बारे में एक चीज और आपसे पूछूंगी, क्योंकि हर हर इंसान में जब वो इस तरह की हेल्पलेस सिचुएशन में होता है तो वो कोई ना कोई ऐसा पात्र ढूंढता है जिसको वो ब्लेम कर सके। और हमने ब्लेम गेम बहुत सुना है पिछले कुछ हफ्तों में। ब्लेम गेम सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि सेंटर ने नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट्स को बताया गया था फिर भी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं किया, लोगों ने एहतियात नहीं बरता, मास्क उतार दिए, नॉर्मल लाइफ की तरफ चले गए, भीड़ भड़क्के में जाने लगे। बहुत बहुत सी चीजें हमने सुनी हैं। और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं इंसानी तौर पे आपसे पूछना चाहती हूं, ये किसकी गलती थी? ये किसकी गलती थी कि ये देश इस दौर से गुजरा? मैं समझती हूं कि ऐसा दौर यूनाइटेड स्टेट्स में भी आया, इटली में आया, जर्मनी में आया, बहुत जगह में आया, पर जब यहां आया तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चरली, ना इमोशनली, ना हौसले की तरफ से। ये क्यों हुआ हमारे साथ? देखिए, जैसा आपने बोला कि ब्लेम गेम सबने खेला है कि भैया आपका कसूर है, इसका कसूर है। मुझे याद है कि जब हमारे मार्क्स कम आते थे स्कूल के अंदर, तो मेरे मदर बोलते थे कि मार्क्स बहुत कम आए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, और गलती की है तू दोबारा पढ़ाई कर और अच्छे मार्क्स लेकर आ। हम लोग और मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, अच्छे मार्क्स लेके पास होते थे। अगर हमारे माँ बाप ने कहा होता कि तूने गलती नहीं की, जो तूने सब किया है वो ठीक किया होता, तो शायद हम लोग पास भी नहीं होते, आगे मार्क्स ज्यादा नहीं आते। हमें ये कन्फेस करना चाहिए कि हमारी गलती थी। कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे जो हमने देखा कि भीड़ भड़के होने शुरू हुए, चाहे किसी भी इवेंट के लिए हो, पर उसने कहीं ना कहीं हमने इग्नोर जरूर किया जो खतरा हमारी तरफ आ रहा। पर मैं कहता हूँ हमने भुगता भी, लोगों ने भुगता भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग दोबारा खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पर। लेकिन खड़े तब होंगे जब हम बोलेंगे कि हाँ ये गलती थी, हमें वापस उसे सुधारना है। हमें हेल्थ केयर उतना बड़ा करना है कि लोग अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एग्जांपल देंगे कि हेल्थ केयर देखो कितना खराब है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल बाद, 4 साल बाद ये बोलें कि हिंदुस्तान जैसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। आज हम 1 से 2% जीडीपी जो खर्च करते हैं हेल्थ केयर पर, मुझे लगता है 8-10% की तरफ हमें सोचना चाहिए। हर एक छोटे से छोटे गांव के अंदर एक्सेस होना चाहिए हॉस्पिटल्स के लिए। और आई थिंक दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव। मैं ऑक्सीजन की बात करें, मैंने बोला कि लोग बोले कि आप एक सिलेंडर्स दे दो, आप हमने सिलेंडर्स बहुत दिए, अभी भी दे रहे हैं और आज भी भेज रहा हूँ। मैंने बोला कि क्यों ना ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर्स लगा दी जाए अस्पतालों में, जिनमें कभी नहीं आएंगे। ऐसे छोटे छोटे अस्पताल, मैंने बहुत सारे अस्पताल चुने हैं, करनूल में चुने, नेल्लोर में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर्स लाए जाएं कि कभी जिंदगी में ऑक्सीजन की कीमत आए ही ना, कभी सिलेंडर के लिए भागना ना पड़े, किसी ऑक्सीजन के लिए आए ना। मुझे लगता है सबको मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए जो जिसकी काबिलियत है, पहुंच है, कि लोग हमारे देश की एग्जाम्पल दें। भूल जाना चाहिए कि गलती किसकी थी, गलती हम सबकी थी, और हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसका हमने भुगता भी है उस चीज को, बट वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। लेकिन सोनू सूद, आम आदमी अपनी गलती मान भी लेगा, लेकिन क्या देश बदलेगा? क्योंकि एक लेवल पे हमारे अंदर पॉलिटिकल ईगो इतनी है, सिस्टेमिक ईगो इतनी है कि कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं है। और आपने कहा, अगर हमने बचपन में सीखा है कि गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है, तो पहले तो एडमिट करना पड़ेगा ना कि गलती हुई। हम एडमिट कर रहे हैं, हमने कुंभ मेला किया, हमने इलेक्शन की रैलीज की, पर आज भी हमारे यहां किसान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, किसान के प्रोटेस्ट जिस पर चल रहे हैं, माना उस पर 2 राय हैं या 4 राय हैं या 10 राय हैं, और माना उसके लिए एक साइड जिम्मेदार है, दूसरी साइड जो है वो अपना हक रखती है, डेमोक्रेटिक हक, लेकिन मौतें आज वहां भी हो रही हैं। हम एडमिट करें ना करें, मौतें उन प्रोटेस्ट में भी हो रही हैं जो आज तक चल रहे हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल या सोशल टैबू सा माना जाता है कि किसानों के बारे में हम कुछ नहीं कहते। जो वहां मर रहा है वो तो कोई छोटा आदमी होगा, कोई नेता तो होगा नहीं किसान का। आज भी एक मौत अगर हुई है तो क्या हमने ये पूछा कि जो किसानों के साथ वहां बैठे हुए हैं उनकी टेस्टिंग किसी ने की क्या? एक लड़की जिसकी मौत हुई, कोविड से हुई, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसका टेस्ट
करा या नहीं करा, उसके साथ जो लोग थे, 30 अप्रैल को ये सब हुआ, उसके बाद किसी की टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, ये बुनियादी सवाल हमारे यहां पूछने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इस पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन ले लेगा और कोई कहेगा कि आप उस साइड के हैं या इस साइड के हैं। देश को जिस तरह 2 विभाग कर दिए गए हैं, अगर आप सवाल पूछें तो आप उस साइड हैं, अगर आप सवाल ना पूछें तो आप इस साइड हैं। ये कैसा बंटवारा है हमारे देश का? ये बहुत सैड लगता है कि आप कई बार अपनी इमोशंस व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहले नहीं होते थे, आज अपन कर देते हैं हम लोग, तो तुरंत उस पर रिएक्शंस आते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोला होगा, या लोगों के अपने किसी की तारीफें शुरू हो जाती हैं, कभी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो कोरोना है वो नहीं देखता कि ये कुंभ है, ये इलेक्शन है, या फार्मर्स के प्रोटेस्ट है, कुछ भी है, उसने तो अपना काम करके जाना ही है। लेकिन जिम्मेदारी हर किसी को लेनी पड़ेगी कि जहां पर भी तकलीफें आई हों वहां टेस्टिंग होनी चाहिए। आपको प्रोटेस्ट करना कीजिए, लेकिन वहां पे भी टेस्टिंग होनी चाहिए। वहां पे भी गलत होगा अगर वहां से फैल के गांव के अंदर जाएगा। उसने नहीं देखना कि क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमने देखा कि अब गांव के अंदर जिस तरीके से फैला है उसके बारे में किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लोग आगे आ ही नहीं रहे, क्योंकि खुद लोग अपनी जाने बचाने में लगे। ये समय वो था कि जब हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी है, उन सबको एक साथ आकर ब्लेम गेम बिल्कुल बंद करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरी गलती है, मेरे से गलती हुई है और मैं उसको एडमिट करता हूं और मैं इसको सुधारूंगा अच्छा करके, वो सबसे बड़ा है। वो बोलते हैं कि जब मुश्किल में साथ खड़ा, वही सबसे बड़ा। अब लोगों को जरूरत है हमारे देश के कॉमन इंसान को, और हम लोग बोले कि नहीं यार, तुम्हारी गलती के कारण तुमने वहां पे इलेक्शन रैली की होगी या कुंभ किया होगा या फार्मर प्रोटेस्ट किया होगा, इसलिए रहूंगा, इसलिए नहीं। हम क्या सुधार कर सकते हैं? हम में से कितने लोगों ने आगे आए मदद के लिए जिनको जरूरत थी? नहीं आए बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आई होप कि वो समय बदले, जब लोग एक दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बोलें कि यार ये समय सही नहीं है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, देश को सुधारते हैं, फिर वापस शुरू करेंगे हर चीज जो करना चाहते हैं। तो वो समय आने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि वो आएगा जरूर। सोनू, आपको लगता है कि जिस तरह आम आदमी अपनी गलतियां मान लेता है और उसको सुधार करने का भी एक फैसला ले लेता है, ये कभी हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले कभी भी करेंगे? डू यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ आवर पॉलिटिकल क्लास दैट दे विल एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स? बहुत बड़े बन जाएंगे जिस दिन करेंगे, इतने बड़े बन जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उस पॉलिटिकल लीडर को कोई छू नहीं सकता जिस दिन वो खुद आके बोल देगा कि मेरी गलती हुई है, मुझे सुधरने का मौका दो। मैं आपको सच बोलता, मेरे दोस्त मुझे कई बार बोलते हैं कि तेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तू कर दो। मैं मुझे इंटरेस्ट, मुझे ऐसे एक्टर बनना है, बहुत काम करना है, बहुत नाम कमाना है एज एन एक्टर। और मैं जो शायद पॉलिटिक्स में रहकर करता हूँ, शायद अभी भी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आज से 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, मुझे पता नहीं। आज मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा स्पेस करता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी भी स्टेट का होता या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता और मेरे से गलती होती या मेरे लोगों को तकलीफ हुई होती और मैं उन तक वो मदद नहीं पहुंचा सकता था जो उन्हें मेरे से उम्मीद होती, तो मैं आकर हाथ जोड़ता कि मेरे से गलती हुई है, कहीं मेरे अंदर वो कमी है जिसके कारण आपने मुझे चुना। शायद मैं उस लायक नहीं था, लेकिन आप मुझे एक मौका और दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खरा उतरूंगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने मुझे चुना है तो मैं उस लायक था। उसको, गलती को सुधार करेंगे। उससे बड़ा कोई भी नेता हिंदुस्तान में नहीं हो सकता जो वो खुद अपनी गलती मानेगा। लेकिन सोनू जी, आपको लगता है कि ऐसा कभी होगा तब तक कि जब तक चुनाव ना हो? ये चीजें चुनाव में लोग जाकर कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है और हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो वहां का नेता जाएगा, उस वक्त बोलेगा जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माफ कर दीजिए, और 5 साल फिर अगर वो चुन गया तो 5 साल फिर वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। और कहीं ना कहीं एज अ पीपल वी हैव बिगन टू एक्सेप्ट दिस। That is why vote the same people. We don't change our system. People with criminal records continue to be in politics. Somewhere we the people have let ourselves down, because ultimately तो इस देश में वही 33% ओवरऑल नेशनल वोट परसेंटेज चाहिए। तो वो 33% आप किसी भी तबके से ले आओ, जिनमें समझ है या नहीं है। कहना नहीं चाहिए कि कोई जनता में कोई भी बेवकूफ है, लेकिन कुछ ना कुछ करके शॉर्ट टर्म सपने दिखा के आपको वो 33% जब वोट मिल जाते हैं, तो उसके बाद
लोगों में एक कहीं ना कहीं सिनिसिज्म है कि उसके बाद तू कौन और मैं कौन, फिर मुलाकात होगी 5 साल बाद। ये एक रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं बन गई? बिल्कुल, सो राइटली सेड रविका। सच्चाई है जो आपने बोला, ये सच्चाई है जिसके साथ ये देश जीता आया है आज तक। मुझे तो लगता है, अगर आप मुझसे मांगे तो मुझे लगता है रैलीस होनी ही नहीं चाहिए। आप 5 साल काम इतना कमाल का कर दो कि बॉस मैं घर पे बैठा हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर अच्छा काम किया है तो लेके आइए, नहीं अच्छा काम किया तो कोई बात नहीं, फिर मैं अगले 5 साल काम करूंगा। तो देखिए, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई हरा सकता है अगर आप वो वादे पूरे करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक बात तो पक्की है कि आप देश के लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। आप कितना भी काम कीजिए, लोग फिर भी आपको बोलेंगे यार ये आपने काम क्यों नहीं किया, मैंने आपको बोला हुआ। मैं मेरे पास करीबन 30-40 हज़ार रोज मैसेजेस आते हैं, मैं हर किसी तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे सर क्या बात करते हो, आपने तो हमारी मदद ही नहीं की। मैं नहीं पहुंच सकता, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसा आई एम श्योर पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 साल आपने कमाल का काम कर दिया और बदल दिया उस जहां पे भी आप खड़े हुए हैं, तो आपको तो रैली करने को तो स्टेज पे चढ़ने की जरूरत नहीं। अपने घर पे बैठ के एक वीडियो डाल देना चाहिए कि बॉस अगर मैं 5 साल में अच्छा काम किया तो लेके आओ, नहीं तो मैं कोई बात नहीं, अगले साल आपके साथ खड़ा होऊंगा, किसी और को लेके आएंगे। तो देखें, उस पॉलिटिशियन को कोई पॉलिटिशियन हरा ही नहीं सकता। सोनू सूद, आपको लगता है कि इस फील्ड में कुछ लोग जिनमें वो जज्बा है वो घुसते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, या कौन जूते खाएगा, कौन 40,000 फोन रोज सुनेगा, कौन 1 लाख फोन सुनेगा, और काम करने के बाद भी लोग जूते ही मारेंगे, और तमाम चीजें इसमें हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है, और जो आम आदमी जो एक्सपीरियंस करता वो नहीं आते, इसलिए हमारा सिस्टम बदलता नहीं है, और आजकल सिस्टम की बड़ी चर्चा है? बिल्कुल सही बात। मैं तो कहता हूँ कि आम इंसान को आना चाहिए, और तब आना चाहिए कि उसको सिस्टम करप्ट ना कर दे। देखिए, आप एक एक बोलते हैं ना, मेडल सूट लेके अंदर घुसना चाहिए कि आपको अटेंशन इतनी मिलेगी, आपके अंदर पावर आएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पहुंच आएगी। उस सिस्टम ने अगर आपको करप्ट कर दिया तो फिर तो आप उस लायक थे ही नहीं, लेकिन आप आ गए। लेकिन अगर सच्चा कोई इंसान, एक इंसान अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 को तो बदल सकता है। उसके अंदर ताकत होनी चाहिए ना बदलने की। अगर आप सिस्टम के साथ ही बदल गए तो फिर तो आप सिस्टम के लायक थे ही नहीं। आप जीत गए, फ्लूक से जीत गए, या आप कोई पार्टी जीतने वाली थी इसलिए जीत गए, लेकिन आप उस लायक नहीं थे। जब नालायक इंसान उस कुर्सी पर आके बैठ जाएगा तो वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। आपको उस लायक इंसान को चुनना है जो कुर्सी मिलने के बाद भी लायक रहे। तो आई थिंक उसी की तलाश हम लोग हर साल करते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत अच्छे लोग नहीं भी मिलते हैं। और आई थिंक वी नीड टू आइडेंटिफाई विद आवरसेल्व्स कि हमें जिंदगी में करना क्या है और किसे चुनना है। तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे क्यों नहीं? आपने ये लक्ष्मण रेखा क्यों बनाई हुई है? ऑफ कोर्स यू सेड 5, 7, 10 साल बाद पता नहीं, पर अभी क्यों नहीं? क्या अभी जरूरत नहीं है, या आपको अपने पे भरोसा मैं नहीं है, आपको कुछ और करना है, ये प्रायोरिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, अभी जब मैं काम करता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ता भी हूँगा। मैं किसी को भी अचानक फ़ोन कर देता हूँ रात को, मैं देखता नहीं कि इस स्टेट में किसकी सरकार है। मैं हॉस्पिटल के मालिकों से भी बात करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय से भी बात करता हूँ जो रात को 2:30 से 3 बजे ड्यूटी पे है, और फ़ोन वीडियो कॉलिंग पे करता हूँ कि बॉस, ये पेशेंट बाहर खड़ा है, इसको कैसे भी दिलाओ। और कई बार वो बात करता है, वो ऑब्लाइज भी करता है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुरंत, शायद अगर मैं उस लेवल का बन गया या पॉलिटिशियन बन गया, कुछ बन गए, तो शायद दायरे सेट हो जाएंगे। एक एक रास्ता सेट हो जाएगा कि आपको यहाँ से सीधा जाना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, और मुझे वो रास्ता लेना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से जाके मैं बाईपास लेके वहां पहुंचना चाहता हूँ जल्दी, तो शायद मैं ना पहुंचू। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मैं अभी रास्ते खुद के बनाना चाहता हूँ, तो शायद इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ मेंटली। और जब लगेगा कि जो मेरे बनाए हुए रास्ते सही है और उस पर चलकर कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकता है, तो उस दिन मैं जरूर बताऊंगा कि मैं इस लायक हूँ। आप अगर समझते हैं तो मैं आपके साथ। So what you're saying is you will not join another political party where you have another boss who tells you to work according to certain set patterns, but you're not averse to starting your own party where you're the boss and decide what's the route and what's the way for you. Is that what you're saying? No, no, not at all. I think I don't. I'm not equipped, trained, and I don't deserve. As of now, I feel कि मुझे लगता नहीं कि मैं
उतना तैयार हूँ ऐसी कुछ चीज करने के लिए। मैं किसी भी मेरे को कोई भी हाथ पकड़ के ले चलेगा, मैं चल सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। जिस दिन मुझे आना होगा तो मैं तो खुद उनके पास पहुंच जाऊंगा कि सर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आप बताइए, रास्ता दिखाइए, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। और अगर उनका दिखाया हुआ रास्ता सही नहीं लगेगा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल दूंगा कि सर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसा रास्ता चुने। तो मैं फिर करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं चले जाऊंगा वहां से वापस। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मैं अपना करूं, मैं उस लायक ही नहीं हूं, मुझे नहीं लगता मैं उस लायक। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैं अभी, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, तो मैं वो स्पेस को एंजॉय करता हूँ। वो जो दूसरी स्पेस है वो भी अच्छी है, क्योंकि जो आपके बॉसेस होते हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा गुणी है, तो उनका भी सीखना चाहिए, और मैं सीखने को तैयार भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी दूर से बैठा हूँ, थोड़ी उनकी चीजें अच्छी पकड़ता हूँ, थोड़े उनके रास्ते पे चलता हूँ, थोड़े अपने रास्ते बनाता हूँ, और फिर एक नया रास्ता बनता है और शायद वो मंजिल तक थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है। सोनू सूद, आप कह नहीं रहे हैं कुछ खुल के, लेकिन जो जी आप कह रहे हैं जी। उसे मेरे ख्याल से लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। कम से कम मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। लेकिन मैं पूछना नहीं नहीं, चाहती हूँ आपसे कि मैं आपने खुल के एक बोलूंगा, खुल के मैं बोल बात नहीं करूँ। नहीं, ये तो मैं समझ गई। आप जो कह रहे, आप जो बिना कहे कह रहे हैं, मैं वो भी समझ गई, क्योंकि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एंड आपने तो ठीक ही कहा कि रैलीज की जरूरत नहीं है, आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मैं आपकी बात समझ गई, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ पर्सनल सवाल, कि आपने एक जी किताब को ऑथर की है, आई एम नो मसीहा। राइट। Why would you say that? Because many people, and rightly so, who you've helped may think you're the Messiah. Why are you so insistent on saying I'm no Messiah? Do you don't want that kind of an expectation on your shoulders? आपको लगता है ये भार अगर मेरे कंधों पे आ जाएगा तो I will have to live up to an image. Does that create some sense of burden on your shoulders, or is it just plain and simple modesty which makes you say this? आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अ कॉमन मैन। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप विश्वास करें, अभी नहीं पहले से मैं शूट पे भी जाता हूँ, कई बार मैं को एक्टर्स के साथ कम समय बिताता हूँ, मैं स्पॉट बॉय, लाइटमैन, इनके साथ मुझे मजा आता है उनसे बातें करने में। मैं अभी भी जब नीचे बैठता हूँ, मैं मेरे घर पे मैंने कभी पार्टीज वार्टीज की नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्टार पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ। लेकिन मुझे अपने ड्राइवर्स, जो अपने काम करने वाले लड़के होते हैं, जो बिल्डिंग वाले होते हैं, उनके साथ समय बिताने में मुझे अच्छा लगता है। मैं आइडेंटिफाई कर पाता, पता नहीं क्यों कर पाता शुरू से शायद। जब मैं पंजाब में अभी भी जाता हूँ, जब घर पे कंस्ट्रक्शन चलती होती है, ईंटें लगाने वाले होते हैं, वेल्डिंग वाले, मैं उनके साथ बैठा टाइम पास, बहुत मैं कई कई घंटे बैठा रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कॉमन मैन हूँ। जब मुझे कोई बोलता है कि यार सोनू सूद हमारा मसीहा है ये, तो मुझे लगता है कि वो मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं वैसा ही कॉमन मैन रहूं तो अच्छा लगेगा। बट लोग हैं, प्यार करते हैं, तो अपने अपना उनका ढंग है व्यक्त करने का। बट आई एंजॉय बीइंग अ कॉमन मैन। What does common man mean for you? अगर जिसके पास जितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, अगर उसे तबीयत खराब होने पर ऑक्सीजन ही ना मिले, तो वो इससे ज्यादा आम आदमी क्या हो सकता है? ऑक्सीजन ना मिले, दवाई ना मिले, अस्पताल का बेड ना मिले, आईसीयू ना मिले जब चाहिए हो, इससे ज्यादा आम आदमी कौन हो सकता है? तो ऐसा जब आप सुनते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे को मैं ये जो जो आपने बोला, जो हमने माहौल देखा, मैं हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि समय को चेतावनी मत दो, ये समय है, चेहरे याद रखता है। तो जो लोग अपने आप को बहुत शायद इन्फ्लुएंशियल बताते थे या बहुत पहुंच बताते थे, हम सब ने देखा है उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं रात रात भर लोगों से बात करता रहता था। मैं पेशेंट्स के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करता हूँ कि आप टिके रहो, बहुत ऑक्सीजन मत, आपका लेवल कम है, आप लगे, मैं 20-20 मिनट उनसे बात करता रहता हूँ। ये वो लोग हैं जो जिन जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब ये समय आया, तो हर खास आदमी आम बन गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब तक खास आदमी आम के लिए कुछ नहीं करेगा, तब तक वो आम आदमी खास नहीं बन सकता। तो ये समय ने हर खास आदमी को आम बना दिया। हर एक आदमी, बड़े से बड़ा इंसान जिसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, वो भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहा था, एक ऑक्सीजन बेड के लिए दौड़ रहा था।
तो ये एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है नेचर की तरफ से, एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ के अंदर कि आप अच्छी जूते, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घरों की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी में रिलेशन से ऊपर कुछ नहीं है। भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी एक एक परिवार में एक साथ खत्म हो गए। किसी ने आज से 1.5 महीना पहले सोचा नहीं होगा कि आज हम जब सब एक साथ बैठे हुए हैं, अचानक बीच बीच में से कुछ लोग गायब हो जाएंगे और अचानक एक या दो परिवार के जन बचेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। तो ये समय की बहुत बड़ी चेतावनी है सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, गरीब से गरीब के लिए, अमीर से अमीर के लिए, कि आपको लोगों की मदद करनी है। I also want to ask you that we haven't seen the end of it. अब हम देख रहे हैं कि दवाइयों की किल्लत जो हमने कोरोना के लिए देखी, अब ब्लैक फंगस, allied issues have come up. There are children who've lost both their parents. बहुत बहुत दुख है सोसाइटी में जो हमने देखा है। और आपने कल ही शायद ट्वीट किया और आपने कहा कि डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ क्यों लिखते हैं जो मिलती भी नहीं। दवाइयाँ भी लिखते हैं और हमें पता है कि हमारा एक ही सुरक्षा कवच है, वो है वैक्सीन। वो है नहीं, जितने हम लोग हैं उतनी वैक्सीन्स हैं नहीं, और शायद अगले 2-3 महीने में अगर प्लान भी करते हैं तो हमें समय लगेगा, पहुंचेंगी ये दवाइयाँ, वैक्सीन्स पहुंचेंगी और तब लगेंगी। ये सब हमें क्या सिखा रहा है? हमें इसके बीच में कहानियां आती हैं कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, कुछ लोग पैसे भी बना रहे हैं, कुछ लोग अरेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये हमें क्या सिखा रहा है? कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हैव वी लॉस्ट आवर सोल? ऑफ कोर्स आई बिलीव कि इंसान बहुत है और इंसानियत बहुत कम। बहुत सारे लोगों को हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मेरे नाम पे लोगों ने इतने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फाउंडेशंस बनाई हुई हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं मेरा नाम बोलकर कि हम उसकी टीम से हम आपको मेडिसिन दिला देंगे, पैसे भी ले लेते हैं लोगों से। सो मैं बहुत लोगों को पकड़ा, मैंने बहुत सारे लोगों ने पकड़ा। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे पता है तू कहीं पे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस जगह पे खड़ा, मैंने ट्रैक कर लिया। तो वीडियो कहता, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सोनू सूद बोल रहा है। मैंने बोला कि काम कर, वीडियो कॉल पे आ। मैंने वीडियो कॉल पे आया तो उसने अपना कैमरा छिपा के रखा और वो मुझे देख के घबरा गया। मैंने, सर आप तो सच में आप भी बोल रहे हो? मैंने बोला कि क्यों ऐसा करता है काम, लोगों की जान जा रही है, तू ये सब काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं तेरे को जॉब देता हूँ, बता तेरे को क्या दूं। तो बेचारा रोने लगा फोन पे, सर मैं मुश्किल में था, मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, ये नहीं। तो मुझे पता है लोग अपनी जरूरतों के कारण ये काम करें, लेकिन इंसानियत जो है वो बोलते हैं पाताल के अंदर जा चुकी है। लोगों के अंदर वो फीलिंग ही खत्म होगी कि एक बहुत मुश्किल से कोई इंसान अपनी माँ, अपने फादर, अपने बच्चों के लिए मेडिसिन ढूंढ रहा है और आप उसको कई बार नकली मेडिसिन दे रहे हैं या फिर उसको ब्लैक में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और अब सोचिए कि कैसा, हमें बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को मैं फोन करता रहता हूँ दिन रात, फार्मेसीज में, कंपनीज में, डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास कि कहाँ मेडिसिन मिलेंगी। और मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि यार आप ये इनसे पैसे मत लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये अफोर्ड नहीं करते। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरे तक पहुंचे नहीं होते और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जब हम इतनी पहचान होने के बावजूद हम लोगों को नहीं मिल पाती, तो कहाँ आम आदमी को जो पर्ची लिख कर दे दी जाती है एक प्रिस्क्रिप्शन की, आप जाइए, तो मिल ही नहीं सकती उसको, कभी मिलेगी नहीं। और जिंदगी भर वो पर्ची जो प्रिस्क्रिप्शन है वो संभाल के रखेगा कि ये मेरे फादर के लिए दी थी और मैं ला नहीं पाया और मेरे फादर चले गए। वो आई थिंक वो जिंदगी की विल उसकी वही हो जाएगी। बोलते हैं कि जो माँ बाप दे के चले गए कि वो एक छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन है जो दवाई नहीं दे पाए। तो आई थिंक आई फील वेरी हेल्पलेस कि ऐसा क्यों है, क्या इंसानियत खत्म होती जा रही है, या ये समय जो है वापस इंसानियत लेके आएगा कि बॉस जाग, अब तो जाग, नहीं अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? तो मुझे लगता है कि जो नहीं जाग पा रहे वो तो जिंदा है ही नहीं, वो दिख रहे हैं पर आई थिंक दे आर नॉट अलाइव। Sonu Sood, I refuse to believe that you do all of this just out of the goodness of your heart. I refuse to believe कि आपको ये सब दिखता है और आप लोगों को जोड़ते चले जाते हैं। क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? क्या हम इस देश में 74 years after our independence we are in this condition? Why are we in this condition?
who has brought us here. क्या आपको ये सवाल नहीं आते, कभी कभी गुस्सा नहीं आता, कभी आपको नहीं लगता कि आप किसी को पकड़ के झकझोर दें? क्या आपके दिमाग में लोगों की शक्लें नहीं आती कि ये शक्लें हैं, ये लोग हैं जिन्होंने लेट डाउन किया है? कभी भी ऐसी फीलिंग आपके अंदर नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन की, एंगर की, या एक जवाब मांगने की? क्योंकि हर इंसान में कई भाव होते हैं, कई रस होते हैं। क्या आपको कभी नहीं आता? बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग टू यू फॉर ओवर 35 मिनट्स. I don't, everywhere you're saying that you understand इंसानियत, yes, but when you lose somebody close, बॉस अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता, इंसानियत से नहीं होता, तब गुस्सा भी आता है. क्या सोनू सूद को कभी गुस्सा नहीं आता? सोनू सूद का मन नहीं करता कि वो जवाब मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनके साथ वो जुड़ा है? मैं मांगता हूँ, मैं हर रोज वो जवाब मांगता हूँ कि ये लोग बेकसूर हैं. मुझे दुख होता है, मुझे हेल्पलेसनेस लगती है. मैं परसों नरसों में बैठा था, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे. मेरी फैमिली ने देखा है, दे फेल्ट, दे केम कि क्या हुआ, क्योंकि उस दिन इतने लोगों की डेथ हुई जिनको बचाने की कोशिश कर रहे थे. बड़ी मुश्किल से रात को 4 बजे आईसीयू बेड मिलता था, 5 बजे उसकी डेथ नहीं हुई कि सर आप 4 घंटे पहले ले आते. तो और देर ऑल यंग पीपल. मुझे इतनी हेल्पलेसनेस लगी कि यार क्या है, मतलब हम लोग क्यों हैं, मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग. आई फील वेरी, और मैं देखिए गुस्सा निकाल नहीं सकता. मुझे हेल्पलेसनेस इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं. हम वी टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि यार चलता है. हम अस्पताल जाते थे, अस्पताल की हालत चलता है, हम अपना रात बना के जाते थे. जो करता था अस्पताल में, किसने देखा कि सरकारी अस्पताल में क्या जरूरत थी ऑक्सीजन? किसने आज तक, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं अपने आप को गिनता ही नहीं. आप सोचिए कि किसी ने आज तक सोचा कि ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं. महंगे नहीं रहते, लग सकते थे ऑक्सीजन जनरेटर्स. इतने बड़े बड़े लोगों की जान चलेगी क्योंकि ऑक्सीजन होगी, सब प्लांट रहे हैं. पर टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सपोज, बेस्ट टू बेस्ट हमारे पास आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए हमने कभी ये सोचा? फील वेरी सैड. और मुझे कि उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और सोच लेके आना पड़ेगा. बस मैं करूंगा आगे, मेरा काम नहीं. मुझे कई बार लोग पूछते ऑक्सीजन प्लांट लेके हॉस्पिटल में क्यों लेके आ रहा, तेरा जॉब थोड़ा. मैं बोला कि कोई बात नहीं, शायद मैं 5-7 लेकर आऊंगा तो मेरे को देख के मेरे से बहुत बड़े लोग जो हैं वो शायद 50 लेकर आए. तो मुझे कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. और मुझे आया भी, मेरे कई डायरेक्टर्स ने फोन किया मुझे, सोनी यार मैंने सुना कि ऑक्सीजन प्लांट लेके आ रहा है यूएस से, वहां से लेके आ रहा है, तो ये कहाँ मिलता है ऑक्सीजन प्लांट, कैसे लेके आएंगे, क्या कंप्लायंस रहते हैं, क्या इसकी परमिशन रहती है? मैं कहा सर ये ऐसा परमिशन रहती है, ऐसा करवाना पड़ेगा, आई सेंड यू ऑल द पेपर वर्क, डू इट. एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट. तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता है, वो आई तो है. आप अवेकनिंग तो करनी ही पड़ेगी. देखो सबके अंदर अच्छापन होता है रविका, हम लोग सब जानते हैं. मैं भी पहली बड़ी इच्छा होती थी कि मैं लोगों की मदद करूं, फिर हमको तो कैसे करें यार, कुछ समझ नहीं आता, किसको दें, उसको दें, वो पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है पता नहीं हमारा पैसा सही ढंग से पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी. हम लोग बड़े अच्छे तरीके से चेक काट के दे देते थे कि बॉस हेल्प करो, लेकिन जब आप नहीं आओगे वो हेल्प नहीं बदलेगी. चेक काटने से हेल्प नहीं पहुंच सकती. आप एक ड्राइवर बोलते हैं ये सफर बहुत लंबा है. मैं कहता हूँ कि एक ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता. अगर आप एक गाड़ी ड्राइवर के एक हाथ में देंगे, वो गाड़ी सो के कहीं ना कहीं ठोकी देगा गाड़ी. तो हमें खुद पकड़नी पड़ेगी. हम नहीं बोलेंगे कि बॉस चेक पकड़. मैं आज बोलता हूँ कि मैं आज 10 लोगों को बचाऊंगा. मेरे बड़े रिसोर्सेस हैं, मेरे बड़े कनेक्शंस हैं, मुझे बहुत लोग जानते हैं. मैं लोगों को बेड्स भी दिलाऊंगा, ऑक्सीजन भी दिलाऊंगा, उनको घर पे भी पहुंचाऊंगा, बसेस से, फ्लाइट से भी बुलाऊंगा. मुझे अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे. हमारे देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा. जो लेबर इंसान करती है वो काम करना पड़ेगा. वो समय चले गया कि हम लोग अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बोलेंगे वो से काम कीजिए, 500 राशन किट लीजिए और वहां पे पहुंचा के आइए. वहां पे जॉब नहीं खत्म होती. और सोनू सूद को गुस्सा नहीं आता, हर चीज पॉजिटिव है. आता है. मैं दिखाता नहीं गुस्सा. मुझे लगता है कि इसका हल नहीं, इसका हल सुधार है. या तो मैं गुस्सा चिल्लाऊं कि क्या कि क्या होगा, उसका सुधार होगा. लोग देखेंगे, अपने कर्ज देंगे और फिर खत्म हो जाएगा. मुझे उसके सुधार के लिए उसकी तरफ बढ़ने की क्या कर सकूं. विश्वास के मैं इतनी स्टेट इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बात कर रहा हूँ, नेल्लोर, आंध्र, कर्नूल, वहाँ पे उन लोगों को पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे आता है. तो 1-2 सिलेंडर्स लेके आते हैं वहां से, जो ऑक्सीजन मिल गया. नहीं तो आज जब हम वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लाने की बात करते हैं, दे फील वेरी एक्साइटेड. उनको लगता है कि यार जैसे हम छोटे होते थे, हेलीकॉप्टर आता था, हम खुश होते, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चीज है. सो ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये हमारी पहले क्यों नहीं हुई? जो कर सकते हैं उनकी. आई थिंक मेक श्योर कि एवरी सिंगल हॉस्पिटल इन दिस कंट्री हैज गॉट
everything that's needed for a common man. But then we will say कि हम इस देश में रहते हैं कि जहाँ पर हेल्थ केयर जो है उसकी एग्जाम्पल है सारे देशों में दी जाती है, तो वो करना है. सोनू सूद, आप बच रहे हैं, यू आर टेकिंग द इजियर वे आउट. आप सवाल पूछने से डरते हैं. आप अपने आप को बदलने का काम कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं कि आपको देख के सोसाइटी बदलेगी, बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक ट्रूथ टू पावर. इज दैट इट? नहीं, मैं पूछता हूँ. मैंने बड़ी दफा मैंने बोला है, मैंने बोला था, मैंने हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठाया था. मैंने बोला कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है. आज जब हम इतना कम जीडीपी का हिस्सा लगाते हैं, हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए. मैं आज भी बोलता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है. मानता हूं कि इतना बड़ी महामारी आई है कि अगर कोई भी देश में होता तो शायद उनको ऐसा ही हालत होती. लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हमारे पास वो डॉक्टर्स, वो सिस्टम्स, वो सहूलतें नहीं है जो हमारे देश को जरूरत है वो कर सके. मेरे अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं. फिर मैं बोलता हूँ कि ये सवालों के अगर मुझे आंसर्स मिलेंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ. मैंने एक सवाल आज से करीबन 25 दिन पहले पूछा था, क्योंकि मैं हर रोज बच्चों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ. पेरेंट्स के बच्चे चले गए, बच्चों के पेरेंट्स चले गए. मैं कम से कम 300-400 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन बच्चों के पेरेंट्स रहे नहीं, जिनकी मैंने उनको बेड्स भी दिलाए थे, उनको दवाइयां भी दिलाई थी, लेकिन वो नहीं बच पाए. और मैं आज भी उनसे बात करता हूँ कि कैसे बच्चा, क्या कर रहे हो आप. मुझे मैंने सवाल उठाया था कि इन बच्चों की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हायर स्टडीज हो, कहीं भी हो, देश भर के अंदर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए इनके एजुकेशन का, जिन लोगों ने अपने माँ बाप ब्रेड विनर्स खोए हैं. मुझे आज अच्छा लगता है जब मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने एजुकेशन माफ की है, मध्य प्रदेश में माफ किया, जम्मू कश्मीर में माफ किया, छत्तीसगढ़ में किया, असम में किया, यूपी ने आज अनाउंस किया. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज उठाई, सही तरीके से आई, तो कहीं ना कहीं उसकी सुनाई हुई, अच्छा हुआ. तो मुझे लगता है ये सब हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी. मेरी आवाज उतनी ऊंची नहीं है कि सब तक पहुंचे, बट सब आवाज उठाएंगे तो देश तो बदलेगा ही. वेल सोनू सूद, आई एम ग्लैड आई प्रोवोक्ड यू एंड आई गॉट यू टू स्पीक, बिकॉज जहां हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी साथियों की प्रॉब्लम्स के, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम से, हमारा काम यही नहीं खत्म होता. हमें जागरूकता फैलानी है अपने बीच में और ऑल्सो in those who govern us, and that is where we will continue to work as the fourth estate, and we are happy to have you on board on Frankly Speaking to share your experiences, so that जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझेंगे कि गुस्सा सबके अंदर है, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर है. क्या हम सब एक एसी के कमरे में बैठेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और फिर निकल जाएंगे, अपनी ही दुनिया में मसरूफ हो जाएंगे, या हम सब सोनू सूद की तरह कुछ सीख कर, कुछ छोटे से शुरू करके शायद कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे, कुछ किसी का हाथ पकड़ेंगे, कुछ किसी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर साथ चलेंगे. थैंक यू वेरी मच सोनू सूद for joining me on Frankly Speaking, and I wish you all the very best in your endeavors. If we can help improve just a few lives, it will be those few smiles that will matter to the country, the great country called India. Thank you, Sonu.